إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواہ البخاری. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں کہ جس کی بے شمار اور انگنت نعمتیں ہم تمام کے اوپر ہیں. ثانیاً، بے شمار درود ہو تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم تمام کے آخری نبی، ہادی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم حضرات، انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں ہمارے خطبے کا عنوان ہوگا، ہمارے خطبے کا ٹاپک ہوگا وقت کے سلسلے میں، کہ وقت کی قدر و اہمیت دین اسلام میں کیا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم قرآن، حدیث اور فہم سلف کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو محترم حضرات، وقت یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از گولڈ، یعنی وقت سونا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی کیا ہے کہ زیادہ بڑھ کر ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. بلکہ اہل علم نے وقت کو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سے تشبیہ دینے کو بھی ضیاء وقت میں کیا ہے کہ شمار کیا ہے، کہ یہ وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے برابر ہے کہا ہے. تو لہذا محترم بھائیوں، وقت یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی کیا ہے کہ نعمت ہے. وقت یہ ایک باطنی نعمت ہوا کرتی ہے جو ہر ایک کو کیا ہے کہ برابر اللہ رب العالمین کیا ہے کہ عطا فرماتا ہے، اور کوئی کیا ہے کہ محترم حضرات وقت کو نہیں برباد کرتا، بلکہ وقت کیا ہے کہ انسان کو برباد کرتا ہے، انسان کو کیا ہے کہ تہس نہس کرتا ہے. جیسا کہ عربی زبان میں ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، کہ وقت دو دھاری تلوار کے مانند ہوا کرتا ہے کہ اگر تم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، یہ وقت تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، ہلاک کر کے رکھ دے گا. تو لہٰذا محترم بھائیوں، لوگ جو سمجھا کرتے ہیں کہ عمر بڑھتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمر گھٹتی ہے.
ہماری زندگی کا جو بھی لمحہ، جو بھی منٹ، جو بھی سیکنڈ کیا ہے کہ گزرتا جا رہا ہے، یہ لمحہ، یہ منٹ، یہ سیکنڈ ہم تمام کو موت کے کیا ہے کہ قریب لے جا رہا ہے، ہم تمام کو خبر کے کیا ہے کہ قریب لے جا رہا ہے۔ بقول شاعر، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو سمجھا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر گزرنے والا لمحہ ہم تمام کو موت کے، آخرت کے، قیامت کے کیا ہے کہ قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ایسے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کی بہت زیادہ کیا ہے کہ اہمیت ہے، وقت کی بہت زیادہ کیا ہے کہ ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ آئیے وقت کی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں وقت کی قدر معلوم ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی کیا ہے کہ موجود ہیں جن کا نام وقت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی چند ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا نام وقت پر کیا ہے کہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا کیا ہے کہ سورۃ اللیل، سورۃ العصر، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الفجر وغیرہ، اس طرح کی کیا ہے کہ تقریباً قرآن مجید کے اندر 12 کیا ہے کہ صورتیں موجود ہیں جو وقت پر دلالت کرتی ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی دین اسلام میں بہت زیادہ کیا ہے کہ قدر ہے، اہمیت ہے۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک اور چیز جس سے بھی ہمیں وقت کی قدر و اہمیت کیا ہے کہ معلوم ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات میں اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی، تو کہیں والفجر کہہ کر فجر کے وقت کی، تو کہیں واللیل کہہ کر رات کے وقت کی، تو کہیں والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مختلف مقامات پر کیا ہے کہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری چیزوں کی، مخلوقات کی دوسری چیزوں کی قسم کھانا اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے کہ جائز ہے، دوسروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے یعنی ہم تمام کے لیے کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین، امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور اللہ رب العالمین جب کیا ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ان کی جب اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو کیا ہے کہ بتانا کیا ہے کہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید کے اندر بہت سارے جگہوں پر وقت کی قسم کھائی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد وقت کی اہمیت کو، وقت کی قدر کو کیا ہے کہ بتانا ہے کہ میرے نزدیک وقت کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لہٰذا تم بھی کیا ہے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی کیا ہے کہ اہمیت کو سمجھو اور وقت کا صحیح استعمال کیا کرو۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک اور تیسری چیز جس سے بھی ہم وقت کی قدر و اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ محترم بھائیوں، تمام کے تمام عبادات کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے۔ دین اسلام کی یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو ہی لے لیجئے۔ نماز کے سلسلے میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی یقیناً نماز
मोमिन बंदों के ऊपर वक्त मुकर्ररा पर उसका मखसूस जो वक्त हुआ करता है उसमें अदा करना क्या है कि फर्ज करार दी गई है। तो लिहाजा आप कोई क्या है कि जोहर की नमाज असर की नमाज के टाइम पर क्या है कि नहीं पढ़ सकता, और ना ही असर की नमाज असर का वक्त गुजर जाने के बाद में क्या है कि अदा की जा सकती है। तो लिहाजा नमाज ये दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुकर्ररा वक्त पर क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको फर्ज करार दिया है। और इसी तरह से दीन इस्लाम का एक और रुकन ज़कात को ले लीजिए। ज़कात के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वआतू हक़्क़हू यौम हसादिही, यानी और तुम उसमें से वाजिबी हक को, यानी जब खेती काट रहे हो तो उसमें से जो वाजिबी हक यानी ज़कात हुआ करता है उसको तुम उसकी काश्तकारी के वक्त में, खेती काटने के वक्त में क्या है कि मुकम्मल अदा किया करो, दिया करो, ज़कात को अदा किया करो। तो इसको भी ज़कात जैसी इबादत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त के साथ में क्या है कि जोड़ दिया है। और इसी तरह से रोजा जैसी इबादत को लेंगे तो रोजे के बारे में भी आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम खाओ पियो यहां तक के सुबह का सफेद धागा सियाह धागे से क्या है कि वाजे हो जाए, जाहिर हो जाए, फिर तुम रोजे को मुकम्मल करो रात तक। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों यहां पर भी रोजे जैसी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त के साथ में क्या है कि जोड़ा और बताया कि रोजा कब शुरू करना चाहिए और रोजा कब क्या है कि मुकम्मल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों हज जैसी दीन इस्लाम की एक अजीम शान इबादत को ले लीजिए जो कि दीन इस्लाम की एक बुनियाद है। हज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने क्या है कि मुकर्ररा हैं, गिने चुने और मशहूर क्या है कि उसके महीने हैं, उनमें ही क्या है कि हज जो है किया जाए। अगर कोई इंसान हज के जो मुकर्ररा महीने हैं उनके अलावा कोई और दूसरे महीनों में हज करना चाहे तो उसका वो हज अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में कबूल नहीं होगा। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों बताने का मकसद क्या है, ये तीसरी चीज थी जिससे हमें वक्त की कदर मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी इबादत को वक्त के साथ में क्या है कि जोड़ दिया है। अगर हम उन इबादत को अदा करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर जरूरी है कि हम उसको वक्त पर क्या है कि अदा करने वाले क्या है कि अपने आप को बनाएं। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों चौथी चीज जिससे भी हमें वक्त की कदर और अहमियत का अंदाजा होगा वो ये है कि खुद हमारा इंसानी क्या है कि जिस्म है, निजाम इंसानी है, इंसान के जिस्म का क्या है कि निजाम पर भी अगर हम गौर करेंगे तो हमें इससे भी क्या है कि वक्त की कदर क्या है कि मालूम होती है। कि देखिए सबसे पहले जो माँ की पेट से पैदा होता है वो क्या है कि बूढ़ा नहीं हुआ करता, और फिर उसके बाद में जवान वो नहीं होता, फिर उसके बाद में उस पर बचपन कारी नहीं होता, बल्कि क्या है कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो जवान होता है, फिर क्या है कि बूढ़ा हुआ करता है। और इसी तरह से जब उस इंसान का वक्त मुकर्ररा खत्म हो जाता है, मौत का वक्त क्या है कि आ जाता है, तो मोहतरम भाइयों मौत उसको उसके वक्त पर ही क्या है कि आया करती है, उसको उसके बाद में कुछ भी जो है ताखीर और मोहल्लत का मौका क्या है कि अल्लाह की तरफ से नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलन युवक्किरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और हरगिज क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को क्या है कि ताखीर और इसी तरह से मोहलत का मौका क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देंगे इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसके मौत का क्या है कि वक्त आ जाए।
تو لہٰذا محترم بھائیوں یہ چوتھی چیز تھی کہ اگر ہم ہمارے نظام انسانی کو، جسم انسانی کے نظام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس سے بھی کیا ہے کہ اندازہ ہوگا کہ وقت کی بہت زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں قدر و اہمیت ہے۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں ایک اور آخری چیز جس سے بھی کیا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر و اہمیت کیا ہے کہ معلوم ہوا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ محترم بھائیوں قیامت کے دن جو ہر ایک انسان سے اللہ رب العالمین 5 سوالات کیا ہے کہ کرے گا، ان 5 سوالات میں سے 2 سوالات انہی وقت کے سلسلے میں ہوں گے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ ابن آدم کے پیر رتی برابر بھی حرکت نہیں کر سکیں گے، آگے اٹھ نہیں سکیں گے، بڑھ نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ محترم بھائیوں ان 5 سوالات میں سے 2 سوالات وقت کے سلسلے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھے جو 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال کی عمر دیا تھا، تو نے اس کو کہاں ضائع کیا، کیسے کیا ہے کہ تو نے اس کو گزارا؟ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا سوال ہوگا جو کہ وقت پر کیا ہے کہ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا سوال اللہ رب العالمین کا یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، کہ میں نے تجھے جو نوجوانی عطا فرمائی تھی، وہ نوجوانی کو تو نے کہاں کھپایا، کیسے کیا ہے کہ تو نے استعمال کیا؟ یہ اللہ کا دوسرا سوال ہوگا۔ اور یہ دونوں کے دونوں سوالات انسان کے وقت پر کیا ہے کہ دلالت کرتے ہیں، جس سے ہمیں وقت کی قدر، وقت کی اہمیت کا کیا ہے کہ اندازہ ہوا کرتا ہے۔ محترم بھائیوں وقت کی اس قدر دین اسلام میں اللہ رب العالمین کے پاس، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہماری شریعت مطہرہ میں وقت کی اس قدر اہمیت کے ہونے کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو وہ وقت کی نعمت ہی ہے۔ وقت کی نعمت کا انسان کو کیا ہے کہ کوئی قدر نہیں ہوا کرتا، بالکل کیا ہے کہ وہ اس کو ضائع کیا کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو لے کر بہت سارے لوگ کیا ہے کہ گھاٹے میں ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے کہ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی نعمت صحت مندی، دوسری نعمت والفراغ یعنی خالی وقت کا، خالی ٹائم کا، اور اسی طرح سے صحت مندی کا، ان کا استعمال کرنے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہی آج ہمارا حال دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحت مندی ہمارے پاس میں ہے، خالی وقت کیا ہے کہ ہمارے پاس میں ہوا کرتا ہے، سہولت ہر طرح کی ہمارے پاس میں موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا چیز ہے کہ ہم کو جو آنے پر مجبور کرے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے، روزوں کے رکھنے کے لیے، صدقہ و خیرات میں آگے رہنے کے لیے، نیک اعمال میں کیا ہے کہ حصہ لینے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ محترم بھائیوں ماضی میں جو مسلمانوں کو ترقیاں حاصل ہوئی، کامیابیاں حاصل ہوئی ہمارے اسلاف کو، اگر اس کے پیچھے کی وجوہات کو، ریزنوں کو اگر ہم تلاش کرنے جب لگتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کو
हमारे अस्लाफ को यानी सहाबा ताबाइन तबे ताबाइन और इन जैसे बड़े बड़े जो उलमा थे उनको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरक्कियां अता फरमाई, कामयाबियां बुलंदियां अता फरमाई, इसके पीछे एक बुनियादी वजह हम तमाम को यही नजर आती है कि वो बड़े वक्त के कदरदान थे। उनके पास में एक एक लम्हे की क्या है कि बड़ी कदर क्या है कि हुआ करती थी, इंतहाई क्या है कि एक एक लम्हा उनके पास में कीमती क्या है कि हुआ करता था, जिसकी वजह से क्या है कि वो भी 30 साल पाए, कोई 35 साल पाए, कोई 40 साल पाए, कोई 45 साल 40 पर 5 साल पाए, लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी खिदमत अंजाम दिए, ऐसी ऐसी और इतनी इतनी किताबें क्या है कि उन्होंने लिखी कि आज हमको उनकी किताबों की फहरिस्त क्या है कि पढ़ने के लिए जो है नहीं होगा। ये किस वजह से? ये बस इस वजह से कि उनके पास में वक्त की कदर थी, वक्त की अहमियत को वो जाना करते थे, वक्त को फजूल में और बेकार में क्या है कि वो जाया नहीं क्या है कि किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी वक्त में बरकत अता फरमाई, उनकी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत अता फरमाई, जिसकी वजह से उन्होंने कम उम्री में ही क्या है कि बेशुमार और बहुत ज्यादा क्या है कि उन्होंने खिदमत अंजाम दी। मसलन मुहतरम भाइयों, एक मशहूर ताबई हजरत आमिर बिन कैस रहमहुल्लाह के बारे में आता है, ये एक बड़े क्या है कि जाहिद मुत्तकी इबादत गुजार क्या है कि अल्लाह के बंदे थे। इनके बारे में आता है कि एक मर्तबा रास्ते पर से क्या है कि किसी काम से गुजर रहे होते हैं, तो इतने में एक शख्स इनसे जो है कहता है कि अय आमिर जरी देर हमारे पास में आइए, कुछ देर बैठकर बातचीत जो है करते हैं। मोहतरम भाइयों देखिए, उस वक्त इस मशहूर ताबाई आमिर बिन कैस जो कि बड़े इबादत गुजार और मुत्तकी शख्स थे, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपके पास में बैठकर बातचीत करने के लिए क्या है कि तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त यह है कि ये जो सूरज गर्दिश कर रहा होता है, नहीं टिकता, इस सूरज को क्या है कि आप एक जगह क्या है कि खड़ा करके रुका के क्या है कि बताइए, मैं आपसे क्या है कि बातचीत करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। मोहतरम भाइयों, बताना क्या चाहते थे? वो बताना ये चाहते थे कि वक्त किसी के लिए भी क्या है कि रुकेगा नहीं, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकने वाला है। वक्त का हम तमाम को चाहिए कि हम सही इस्तेमाल करें, फजूल में बेकार में क्या है कि वक्त को जाया ना करें, अपने काम से मतलब रखें, नेक आमाल में क्या है कि आगे रहें, ये क्या है कि वो बताना चाहते थे। इस तरह से हमारे असलाफ एक एक लम्हे की क्या है कि कदर किया करते थे, उसको इंतहाई कीमती जाना करते थे। और इसी तरह से मुहतरम भाइयों, इमाम इब्ने अबी हातिम अर्राजी रहमहुल्लाह के सिलसिले में इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सीयर आलामिन नुबला में क्या कि लिखते हैं कि इमाम इब्ने अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह एक मर्तबा अपने एक साथी के साथ में दर्स में शरीक होने के लिए जा रहे होते हैं, दर्स में तालीम में शरीक होने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी निगाह, उन दोनों की निगाह मछली पर जो है पड़ती है, जो कि जो है बहुत उन्हें अच्छी क्या है कि लगती है। तो जाकर उस मछली को क्या है कि खरीदते हैं और फिर क्या है कि उसको अपने घर में क्या है कि रखते हैं, और क्या देखते हैं कि वक्त जो है बिल्कुल क्या है कि दर्स का वक्त क्या है कि बिल्कुल करीब हुआ करता है, तो लिहाजा उस मछली को उस घर में ही रखकर, उस रूम में ही रखकर क्या है कि वो फौरन दर्स के लिए क्या है कि दौड़ते हैं। और मोहतरम भाइयों, इनके बारे में आता है कि इस तरह से ये दर्स में इल्म हासिल करने में क्या है कि मशगूल हो जाते हैं कि 3 दिन तक इन्हें क्या है कि उस मछली का ख्याल नहीं आता। फिर बाद में 3 दिन के बाद में जब अपने घर को जाते हैं तो मोहतरम भाइयों उस वक्त देखते हैं कि वो मछली क्या है कि सड़ चुकी हुई होती है, और फिर ये उस मछली को बिना पकाए वैसे ही सड़ी हुई मछली को क्या है कि खा लेते हैं
किस वजह से? इस वजह से कि इनके पास में पकाने के लिए भी क्या है कि वक्त नहीं था, पकाने के लिए भी क्या है कि टाइम नहीं था। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, ये क्या है कि हमारे असलाफ की क्या है कि असलाफ की क्या है कि ख्याल हुआ करता था, फिक्र हुआ करती थी वक्त को लेकर, वक्त की इतनी ज्यादा उनके पास में क्या है कि वैल्यू और कदर क्या है कि हुआ करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जिंदगियों में क्या है कि बरकत ही बरकत अता फरमाई। उनकी जिंदगियों में चैन और सुकून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है कि डाल दिया। लेकिन मुहतरम भाइयों, हम मुसलमानों का, आज के इस जमाने के मुसलमान मर्दों खातून, मर्दों औरतों का जब हम मुआयना करते हैं, जब हम उन पर नजर डालते हैं, तो हमें मालूम होता है हमारा हाल इस तरह का बन चुका है कि रात में क्या है कि देर तक क्या है कि जागते रहते हैं, रात में देर तक क्या है कि जागते रहते हैं, और सुबह में क्या है कि देर से क्या है कि उठते हैं। ये क्या है कि आज के हमारे इस जमाने के मुसलमान मर्द औरतों का क्या है कि हाल बन चुका है। हालांकि हम उस नबी मुहतरम के उम्मती हैं जो नबी क्या है कि रात में जल्दी ईशा के बाद में फौरन सो जाया करते थे। किस वजह से? इस वजह से कि रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करना है, और तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी भर क्या है कि अदा फरमाई। तहज्जुद की नमाज के टाइम पर, रात के आखिरी पहर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जागा करते थे। हम उस नबी रहमत के क्या है कि उम्मती हैं, और उस नबी के हम उम्मती हैं जो नबी क्या है कि अपनी उम्मती के सिलसिले में ये क्या है कि दुआ करके गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कहा बूरी कफी उम्मती फी बुकूरिहा, के मेरी उम्मत के फजर के वक्त में क्या है कि बरकत रख दी गई है, बरकत डाल दी गई है। लेकिन फिर भी मुहतरम भाइयों, हमारा हाल ये है कि हम क्या है कि वक्त का सही इस्तेमाल करने और वक्त की कदर करने से क्या है कि बिल्कुल दूर है, जिस ही की वजह से आज हम तरक्कियों से, आज हम कामयाबियों से क्या है कि बिल्कुल दूर है। आज हम पर जालिम हुक्मरान क्या है कि मुसल्लत हो रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वक्त का सही इस्तेमाल करें, बेकार में, फजूल की चीजों में, ऐसी वैसी बातों में, गपशप करने में, और मोबाइल में गेम वगैरह खेलने में, और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में, इन तमाम चीजों से क्या है कि अपने आप को बचाया करें। क्योंकि मोहतरम भाइयों, ये चीजें क्या है कि शैतान की तरफ से क्या है कि हुआ करती हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वो देखिए फरमाते हैं कि शैतान जो इंसान को गुमराह करता है, वो 5 तरीके से क्या है कि शैतान इंसान को क्या है कि गुमराह किया करता है। जिनमें से सबसे पहला तरीका ये हुआ करता है कि शैतान इंसान के पास में आकर इंसान को क्या है कि शिर्क और कुफ्र की जानिब क्या है कि खींचता है, बुलाता है, दावत देता है शिरकिया काम और कुफरिया काम की तरफ। जब इंसान अपने ईमान की हिफाजत करता है, अपने तौहीद की हिफाजत करता है, शिर्क और कुफ्र से बचता है, तो फिर शैतान इंसान को बिदआत और खुराफात की दावत देता है कि दीन में नई नई चीजें, ऐसी चीजें जिनका दीन इस्लाम में कोई क्या है कि हिस्सा नहीं है, कोई असल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ऐसी चीजों को ईजाद करवाता है इबादत समझकर क्या है कि इन बिदआत में क्या है कि मुब्तला करने की कोशिश करता है। जब इंसान बिदआत से भी अपने आप को जो है बचा लेता है, तो उसके बाद में शैतान तीसरा रास्ता कबीरा गुनाहों में मुब्तला करने की इंसान को कोशिश करता है। और जब इंसान बड़े बड़े गुनाह, कबीरा गुनाहों से भी अपने आप को बचा लेता है, तो फिर सगीरा गुनाह, छोटे गुनाहों में क्या है कि मुब्तला करता है। और अगर इंसान सगीरा गुनाहों से भी क्या है कि बचा लेता है अपने आप को, तो उसके बाद में शैतान इंसान को इश्गालुल मुस्लिम बिल इबादतिल मफजूलति अनिल फादिला, शैतान जो
अफजल इबादत है, उस अफजल इबादत से इंसान को क्या है कि हटाकर जो मफजूल इबादत हुआ करती है, यानी उससे कम दर्जे की जो इबादत हुआ करती है, ऐसी इबादतों में शैतान इंसान को मशगूल करने की कोशिश करता है। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम वक्त की जो है बहुत ज्यादा कदर करने वाले क्या है कि बने, हमेशा वक्त की कदर करें, वक्त को क्या है कि हम कीमती जो है जाने, वक्त को बेकार में जाया क्या है कि हम हरगिज हरगिज क्या है कि ना करें, और अपने आप को हर तरह की शिरकिया और कुफरिया चीजों से बचाएं, बिदात और खुराफात से बचाएं, कबीरा व सगीरा गुनाहों से बचाएं, और ये फिक्र अपने दिलो दिमाग में बिठाएं कि अफजल इबादत कौन सी है, अहम इबादत कौन सी है, ज्यादा अजर सवाब वाली इबादत कौन सी है। ऐसी इबादत को क्या है कि मैं करूंगा जो इबादत क्या है कि किताब और सुन्नत से साबित शुदा हो। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर को और अहमियत को समझे। खुलासा खुतबा बस यही है कि हम अगर चाहते हैं कि हमको कामयाबी क्या है कि हासिल हो, हमारी दुनिया व आखिरत क्या है कि कामयाब हो, हम तमाम को उरूज और तरक्की क्या है कि हासिल हो, हमारी जिंदगियों में सुकून, राहत और चैन क्या है कि हासिल हो, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम वक्त की कदर करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, कि इबादतों के वक्त में हम इबादत में क्या है कि आगे रहें, नमाज पढ़ने के वक्त में वक्त पर हम नमाज की पाबंदी करें, और इसी तरह से तिलावत कुरान के लिए एक मखसूस वक्त क्या है कि हम दें, जिक्र अज़कार के लिए एक मखसूस वक्त, दुआ के लिए एक मखसूस वक्त हम दें, और इसी तरह से तिजारत के वक्त में हम क्या है कि एक मखसूस वक्त उसके लिए, दुनियावी कामों के लिए एक मखसूस वक्त क्या है कि हम उसके लिए अता करें। तो इस तरह से अगर हम क्या है कि वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हर किस्म के बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो मुहतरम भाइयों, जिसके बाद में हमारी दुनिया व आखिरत क्या है कि इंदल्लाह कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, हमें वक्त की कदर करने वाला बनाए, हमें हर तरह की बुराइयों से और गुनाहों से क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया व आखिरत को कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया व आखिरत को कामयाब फरमाए।